Hi guys, I hope you're doing well, and in this video we're going to be discussing the latest case study from Feb March 2022. Now guys, first before I move on with the case study, I want you to pause the video and first read the case study yourself. If you guys don't have the case study, then there's no need to worry. Just go down, click on the description below. There's a link attached over there, so you can read the case study from there and then come back to the video. So guys, now I'm assuming that you have gone through the case study, and now let's jump straight into the video. Now basically, as far as the case study is concerned, I have drawn certain conclusions from the case study, and before I move on to the questions, first we will see what the case study is briefly telling us and what are the main points that we have extracted from the case study. So there are three diagrams basically that are mentioned in the case study. The first diagram is basically telling us the current account changes for the 3 quarters, that is starting from August 2019 to April 2020. That is, they have given us a 9-month data regarding the current account changes. Then in diagram 2, they are telling us the inflation rate changes again for the 3 quarters, and then in diagram 3, they are telling us the terms of trade changes for the 3 quarters, that is for the 9 months. So guys, the case study then also tells us that there's an expected reduction in the interest rate from, let's say, 24% to 8%. Then the case study also mentions that the inflation rate increased from 8.6% in October 2019 to 11.4%. So yeah, it's telling us that the inflation rate of Turkey has gone up. It also tells us, about the real interest rates, it tells us that if the interest rates are basically cut to 8%, that what they were expecting, if that happens, the real interest rates will become negative, right? And it's telling us that these are the lowest real interest rates in Turkey. So it's mentioned somewhere over here that the real interest rates in Turkey are basically among the lowest in the world, right? They're among the lowest in the world. So and so the thing is that basically real interest rates are basically interest rates minus the inflation rates. It's telling us the real value of the interest rates, and we'll see to that further. There's a question on it as well, and I'll be explaining you how that would have an impact on lenders, borrowers, saver, etc. Moving forward, the case study also tells us that there is, because of the negative real interest rates, that is basically discouraging the foreign investment, and it's also discouraging the foreign lending to the Turkey government, right? The foreign investors are, reluctant to lend to the Turkish government, and also the fact that that would also have a negative impact in terms of that would discourage foreign investment into Turkey as well. Why? Because obviously, if real interest rates are negative, we need to understand that it will have a negative impact for the lenders. Why? Because you need to understand, if you lend to someone, obviously the borrower pays back interest to the lender, right? But in real terms, the interest that the borrower will pay to the lender, in real terms, it's negative. So the lender is not benefiting anything, right? In real sense. And that's why it's actually discouraging the lending to the Turkish government. Not only that, guys, the real interest rates, since they are negative, it's also going to have a negative impact on the hot money inflows into Turkey. Many of the foreign investors who have invested in Turkey, they might withdraw their money. There might be a flight of capital, flight of short-term flows out of Turkey because of the negative real interest rates, right? Because their return would now be negative in real sense, right? And guys, this will also have a negative impact on the demand and supply of lira, because of hot money outflows. In fact, because of hot money outflows, the supply of lira would go up, and because the hot money inflows will also go down because of the negative real interest rates, that would also reduce the demand for lira. So the demand for lira will go down because we know that hot money inflows will go down because of negative real interest rates, since the lenders or the people who will deposit in Turkish banks, in Turkish commercial banks, will not get anything in return, right? In the real sense, in fact, their returns would be negative in real terms, and also there would also be an outflow, hot money outflow as well, because of negative real interest rates. Maybe they could find their money being deposited in some other country where interest rates are more attractive, which will offer them more better returns. So supply of lira will go up and the demand for lira will go down. And and we can also see in the case study, also tells us that this has raised concerns over the currency, the external value of
the currency because lira has depreciated, and that's what they are saying, that this has impacted the depreciation of their currency. The lira depreciates against the dollar as well. So it says that the lira has been the lowest. So now the $1 is now equal to 7.3 liras, right? So and then there's also, the case study also mentions that there is a further concern that if the interest rates fall further, it would actually result, it would fuel inflation. That's another concern that the case study mentions. While some of the people also believe that the interest rate should continue to fall actually further. Why? Because obviously it mentions about the COVID pandemic. So the central bank of Turkey, it says that if they reduce the interest rates, it would actually speed up recovery from the pandemic, because obviously a fall in interest rates would increase your aggregate demand. And then again, there's a question also using this concept as well. So these are some of the conclusions that we can draw from the case study. Now guys, let's move on to the questions. Now guys, part A says that with reference to figure 1.1, describe how Turkey's current account balance has changed between August 2019 to April 2020. It's a 2-mark question. So let's see what's happening in figure 1.1. So guys, first of all, you need to understand that you guys do not need to panic when you see these kind of graphs and figures in the case study, because this usually freaks the students out. But you need to first relax and you need to learn how to comprehend the diagrams. You need to understand how to comprehend these graphs. Right? These graphs are basically showing you certain trends, and the examiner, remember that, expect this, that the examiner will be giving some form of data in the form of these trends, and it will also be asking you to comprehend and analyze those trends, that is, or the changes that is happening. So you don't need to panic. It's very easy to comprehend these values. So, and I'm going to teach you how to do that. So just make sure that you watch the video till the end. So guys, now let's see what figure 1.1 is telling us. It's telling us the current account balance. So if we can see that from August 2019 to August 2020, basically the current account balance has deteriorated. Initially it was in a surplus, and now we can see it's in a deficit, right? Because this is positive, this is negative. So it's telling us that the current account balance has gone down, it's deteriorated, it has worsened over the period from a surplus to a deficit. Now you guys need to specifically mention that it has gone from a surplus to a deficit. Don't just say that the current account balance has worsened, because if you say worsened, then worsened is a vague term in the sense, because let's say if the surplus falls down, that's also worsening of the current account balance. Right? So make sure that you mention the fact that when you say that it's worsened, you're actually referring to the fact that it has actually gone down to the extent that the surplus has converted into a deficit, right? So I have basically since this diagram, this figure 1.1 is telling you the values, I've actually also tried to show a trend over here of what this figure is trying to teach you. So if you look at this trend, right, it's basically a downward trend. So what you need to do is that you see that, initially in August, August 2019, your balance was in a current account, your current account balance was in a surplus. But if you look at, somewhere in April 2022, it's basically in a deficit. And initially in August 2019, it was in a surplus, right? So overall, if you try to assess this, trend line, this is showing a downward trend. It's simply telling us that the current account balance has been worsening from a surplus to a deficit, right? So remember, इन ग्राफ्स को असेस करने के लिए, evaluate करने के लिए, what strategy you have to do, सबसे पहला जो काम आपने करना होता है ना, वही करना होता है कि आपने ये देखना होता है कि ये ग्राफ बताना क्या चाह रहा है आपको. तो आपको ग्राफ क्या बताना चाह रहा है? आपको ग्राफ बता रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस बता रहा है. आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके चला करें एग्जाम में. फ़ौरन से अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले देखें व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू टेल. अच्छा ठीक है, ये हमें बता रहा है करंट अकाउंट बैलेंस बता रहा है, ठीक है. फिर हमें नज़र आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर टाइम पीरियड दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं, यार बैलेंसेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑब्वियसली दैट्स टेलिंग अस अ सरप्लस एंड अ डेफिसिट. तो ये हमें डेफिसिट और सरप्लस की एक फिगर और वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है. फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगस्त 2019 से अप्रैल 2020 में क्या चेंजेस, बेसिकली क्या ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है. तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, सरप्लस से डेफिसिट हो गया है. एक गलती जो उसमें बच्चे करेंगे, जो करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जब भी आपको ट्रेंड असेस करने को आए या चेंजेस आपसे पूछे जाएं,
प्लीज़ 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 मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर चेंज देने एग्जाम में ना बैठ जाया करें। वो अक्सर बच्चे ही करेंगे कि अगस्त के अंदर बताएंगे अगस्त 2019 में डेफिसिट सरप्लस की वैल्यू 3304 थी, फिर अगस्त के बाद सितंबर जब आया तो सितंबर में 2870 थी, फिर अक्टूबर में 2961 थी, उसके बाद जैन 2020 के अंदर 1719 का डेफिसिट था, और फिर जो है वो मार्च के अंदर 448। मंथ बाय मंथ एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत नहीं होती और डिस्करेज करते हैं एग्जामिनर्स, ये नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज ये तो हमें भी नज़र आ रहा है मंथ बाय मंथ, तो हम ग्राफ में हमें दिख ही रहा है कि यार क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। उसी वैल्यूज़ को अगर आप डिस्क्रिप्टिव लाइन फॉर्म में लिख रहे हैं, सो यू नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। एग्जामिनर ना यहाँ पे आपके ग्राफ को और लाइंस को और टेबल्स को, पैटर्न्स को, इनफैक्ट पैटर्न्स को जज करने की स्किल देखना चाह रहा होता है। क्या आप असेस कर पा रहे हैं ये पैटर्न क्या शो कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिंपल सा 1 लाइन का आंसर लिखेंगे, 2 मार्क क्वेश्चन है। आप सिंपल इसका आंसर ये है, क्या द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ टर्की हैज मूव फ्रॉम अ सरप्लस to a deficit between August 2019 to April 2020, and that is it. That's the end of story. Okay guys, now let's move on to part B of the question. It says, how could the data in figure 1.2 be used, how could that data be used to explain the changes in the terms of trade between the time period August 19 and April 20 as shown in figure 1.3. तो देखिए फिगर 1.3 में तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड के चेंजेस दिए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो डेटा 1.2 में दिया हुआ है उस डेटा को यूज़ करके जो फिगर 1.3 से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ 1.2 के डेटा से कैसे प्रूव हो रही है, बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहे हैं। तो इसके अंदर आपको देखना होगा फिगर 1.2 और 1.3 के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो फिगर 1.2 के अंदर टर्की का एनुअल इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है अगस्त से लेकर अप्रैल 2020 तक, और अगर देखा जाए तो अगस्त में 15 था, फिर एकदम से ड्रॉप हुआ है, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमें नज़र आ रहा है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमें नज़र आ रहा है कि एक अपवर्ड ट्रेंड है इन्फ्लेशन के अंदर, और अक्टूबर ऑनवर्ड्स हमें दिख रहा है कि यार इन्फ्लेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होती हुई हमें नज़र आ रही है। और समवेयर अगर देखा जाए तो एवरेज जो है ना, अगर हम इन्फ्लेशन को एवरेज देखें अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन हैज़ एवरेज्ड बिटवीन 11 and 12%। अब एग्जैक्ट एवरेज आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं इसमें। आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी अगर आप ना दें, एग्जामिनर को ये भी बता दें कि देखें इन्फ्लेशन जो है ना वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और केस में भी ये लिखा हुआ है, देखें केस स्टडी में भी इन्फ्लेशन हमें अक्टूबर ऑनवर्ड्स दी है, उन्होंने यही लिखा है इसके अंदर कि एनुअल प्राइस इन्फ्लेशन 8.6% अक्टूबर में थी और अब 11.4 है, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये बात कर रहे हैं कि वो इंक्रीज़ ही होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो आप ये बता दें कि देखें इन्फ्लेशन अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और 11 to 12% के बीच में वो एवरेज कर रही है इस दौरान, यानी अक्टूबर 19 से लेकर अप्रैल 2020 के दौरान वो समवेयर 11 से 12 इंक्रीज़ हो रही है और फिर वो बिटवीन 11 to 12% एवरेज कर रही है। और अभी की अगर हम बात करें तो वो समझ लेंगे 11.4% हमें वैल्यू दी हुई है, इफ़ यू नो टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। एनीवेज गाइज, मूविंग फॉरवर्ड फिगर 1.3 की अगर हम बात करें तो फिगर 1.3 में हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड नज़र आ रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस ओवर इंपोर्ट प्राइसेस। टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू इंडेक्स में दी हुई होती है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे आगे। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अगेन टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यूज नज़र आ रही हैं। देखिए मैंने आपको पहले फिर बता रहा हूँ, इस तरह के ग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए ना सबसे पहला स्टेप है एक्स और वाई एक्सिस पे देखो क्या है। एक्स एक्सिस पे आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, वाई एक्सिस पे आपको इंडेक्स वैल्यूज़ दी हुई है टर्म्स ऑफ ट्रेड की। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स में एक्सप्रेस होता है, तो इसका भी अगर आप ट्रेंड देखें तो एक अपवर्ड ट्रेंड है, यानी मैंने बेसिकली इन पॉइंट्स को जॉट डाउन करके ट्रेंड भी यहाँ पर शो कर दिया है, पैटर्न शो कर दिया है कि अगस्त से लेकर अप्रैल 2020 में हमें एक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड में। यानी ओवरऑल टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर हम एनालाइज करें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अगस्त से लेकर अप्रैल में इंप्रूव हुआ है। हालांकि बीच में ड्रॉप हुआ है, लेकिन वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि बीच में ड्रॉप हुआ है। देखिए मुझे आप और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड जैसे एनालाइज होते हैं, ठीक है ना। आप बताएं स्टार्ट में ये था, अब ये था, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है, ठीक है। मंथ बाय मंथ बैठ के नहीं बताएंगे कि जी इस महीने ड्रॉप हो गया था, इस महीने ही हुआ था। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो आपको एक नज़र आ रहा है कि वो ओवरऑल इंप्रूव हुआ है, ठीक है जी, और टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू जो है वो हमें नज़र भी आ रही है कि ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है। अच्छा, अब इसके आंसर में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ कुड द डेटा बी यूज टू एक्सप्लेन द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। सही है, अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप बता दें, वैसे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क का आंसर है, डायरेक्ट आप ट्रेंड और पैटर्न में क्या चेंज है ये बताएंगे, दैट्स इट। क्या मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस और वेटेड एवरेज ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करके हम इनकी वेटेड एवरेज प्राइसेस को इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिकली परसेंटेज में नहीं, इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है।
अच्छा गाइस, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे द टर्म्स ऑफ ट्रेड हैज़ बेसिकली इंप्रूव्ड एज पर फिगर 1.3। सो फिगर 1.3 से हमें नजर आ रहा है कि यार टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 1.3.47 टू 110.32। तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस ओवर इंपोर्ट प्राइसेस अगर हम देखें तो अगस्त 2019 में 103.47 था, और इस वक्त अगर हम देखें अप्रैल 2020 में आज हम खड़े हैं तो 110.32 है। तो हमें नज़र आ रहा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिख कर आना है कि जी चेंजेस पहले तो देखिए चेंजेस क्या है। आपने बता दिया चेंज ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का फिगर एज पर 1.3 103.47 110.32 हुआ है। इसमें आपको मार्क मिल जाएगा। एक तो एग्जामिनर को ये जानना है कि आप वो बता दें कि वो कित मतलब इम्प्रूव हुआ है और वो इतनी वैल्यू से इतनी वैल्यू हो गया, सही है। और फिर आप बता दें कि फिर वो कह रहे हैं इसको आप प्रूव करें फिगर 1.2 से कनेक्ट करें, सही है। तो फिगर 1.2 में इन्फ्लेशन का रेट में चेंजेस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये बता दिया आपने कि ओवर द टाइम पीरियड देयर हैज़ बीन अ राइजिंग ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड है विच इज़ सजेस्टिंग एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। खैर अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो अब भी काफ़ी ऊपर वाली लाइन आप लिख चुके हैं। अब 1.2 से कैसे कनेक्ट करेंगे आप बताएं कि जी दिस इज ड्यू टू द राइजिंग एक्सपोर्ट। अब देखें पहली बात तो ये अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहे हैं ना, तो ये क्यों इंप्रूव हो रहे होते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपोर्ट प्राइसेस आर राइजिंग फास्टर देन इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज हो रही हैं, मे बी देयर हैज़ बीन नो चेंज इन इंपोर्ट प्राइसेस, और लेट्स से इंपोर्ट प्राइसेस आर कांस्टेंट, और लेट्स से इवन इफ इंपोर्ट प्राइसेस आर मे बी फॉलिंग एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस आर राइजिंग, इन आइदर केस टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा। बट इसमें ज़ाहिर है इंपोर्ट प्राइसेस के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ, सो लेट्स अज्यूम दैट एक्सपोर्ट प्राइसेस हैव बीन राइजिंग फास्टर देन इंपोर्ट प्राइसेस। ठीक है, तो export prices rising faster than import prices, or by a greater proportion than import prices, let's say. And why is it the reason? Simple reason why is export prices rising? The export prices is rising because of rising inflation in Turkey. Since obviously inflation आएगी तो that would make our exports uncompetitive, और जब वो uncompetitive हो जाएंगे so it will increase the price of our exports. And if the price of exports go up, the terms of trade will improve. But टर्म्स ऑफ ट्रेड के आगे अगर मैं इंप्रूव का वर्ड लगा रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि दिस इज गुड फॉर द इकॉनमी एज वेल। जस्ट बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इंप्रूविंग, इट डजंट मीन दैट दैट इज गुड फॉर द इकॉनमी। वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द रीजन, इफ स्पेशली इफ इट्स कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी अनहेल्दी फॉर द इकॉनमी। हाउएवर इन सब डिटेल्स में आपको नहीं जाना, बस आप बता दें कि फिगर 1.2 शोज इन्फ्लेशन रेट्स आर इंक्रीजिंग आफ्टर अक्टूबर 2019 and averaging between 11 to 12%. And because of that the export prices would go up and that would cause terms of trade to improve as shown in figure 1.3. That's it. और आपने बता दिया कि देखें इसका जो इंडेक्स है वो 103.47 से 110.32 है, और उसको आपने कनेक्ट कर दिया फिगर 1.2 के साथ भी जो इन्फ्लेशन के रेट्स को शो कर रहा है जो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, okay guys, now let's move on to part C of the question. It says consumer price inflation was 8.6% in October 2019 and now it's 11.4, reducing the international competitiveness of Turkey's goods and services. ठीक है, explain using the concept of price elasticity of demand how the increase in inflation has caused the change in Turkey's current account balance between October 2019 and 2020. अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, समझ 4 लाइनों में उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन देखें सवाल बहुत ईजी है। एक दफ़ा पढ़ के ना कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता है, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, एकदम से ना लगता है वो ये क्या सवाल पूछ लिया उन्होंने। तो थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं और प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, पर खुद ही सोल्यूशन आपको आप फिगर आउट कर लेंगे, समझ आ जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करा करें। ठीक है, ऊपर तो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक्सप्लेन कह रहा है, एक्सप्लेन करना है क्या, इसको तो पहले अलग कर देते हैं, यूजिंग द कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। एक्सप्लेन करना है क्या, हाउ द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है, यानी महंगाई आने की वजह से, हाउ दैट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हैज़ कॉज्ड चेंज इन द करंट अकाउंट बैलेंस बिटवीन द टाइम पीरियड। ठीक है ना, हमें पता है करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो हमारा डेफिसिट में जा चुका है, तो वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें कि इन्फ्लेशन की वजह से ये कैसे हुआ है। मगर वो खाली ये बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन आपने करना है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीईडी। ठीक है, अब आपने जब सवाल को ब्रेक किया ना और दोबारा पढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की कोशिश की, तब आपको समझ आ गया तो कुछ भी नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने एग्जाम में भी करना होता है। ठीक है, मूविंग ऑन, इसको देख लेते हैं आंसर। देखिए 3 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, डेटा मैंने थोड़ा पहले लिख लिया आपके लिए। इसमें हमें नज़र आ रहा है सबसे पहला कि यार अक्टूबर 2019 में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस में था और अप्रैल 2020 में डेफिसिट में था। ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट हमें नज़र आ रहा है अभी 11.4% है। इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और पहले 8.6% था अक्टूबर में, और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी हमारे इंप्रूव हो चुके हैं। ये बात हमने फिगर 1.3 में भी देखी थी कि एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है राइजिंग फास्टर दैन इंपोर्ट प्राइसेस, तो ऑब्वियसली इस वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा इंप्रूव हुआ है। और ये भी हमने देखा था कि एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बेसिकली इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ रही है। दैट इज़ द रीज़न वाई टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव एक्चुअली गॉन अप, इट दे हैव इम्प्रूव्ड, और एक्सपोर्ट प्राइसेस यही रीज़न की वजह से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, देखें सवाल
फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीटी हाउ द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हैज़ कॉज द चेंज इन द टर्कीज करंट अकाउंट बैलेंस. तो क्या लिखेंगे आप? सीधा सीधा कोई चेंज इसमें कोई ये नहीं, करंट अकाउंट को एक्सप्लेन कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें लिखेंगे इन्फ्लेशन हैज़ कॉज टर्कीज करंट अकाउंट टू गो इन टू अ डेफिसिट. ये तो हमें नज़र आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट जा चुका है, सरप्लस है, और ये इन्फ्लेशन की वजह से ही है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन से आप बोलेंगे एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो चुकी हैं. दैट हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ दैट हैज़ इंक्रीज देयर प्राइसेस. और ज़ाहिर है जब डोमेस्टिक इकोनॉमी में टर्की में इन्फ्लेशन होगी तो लोग डोमेस्टिक गुड्स कंज्यूम करने के बजाय इंपोर्ट्स करना शुरू कर देंगे. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली इंपोर्ट्स विल बिकम relatively cheaper than domestic goods. So imports have become relatively cheaper than domestic goods. That is why people will import more. So we know that exports will fall, imports will rise, and that is what has caused current account. देखिए ना, सरप्लस से डेफिसिट हो चुका है ना, खुद सोचें. तो इसमें साइमल्टेनियसली दो इम्पैक्ट्स हो रहे होंगे. एक तो एक्सपोर्ट्स गिरने की वजह से भी जो है वो डेफिसिट में जा रहा होगा, प्लस एट द सेम टाइम इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से भी वो डेफिसिट में जा रहा होगा. तो देखिए ना, दोनों इम्पैक्ट्स मल्टीपल फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों फैक्टर्स नेगेटिवली वर्क कर रहे हैं, तभी वो सरप्लस से उठ के डेफिसिट में जा चुका है. खुद सोचें. एनीवेज, this also corresponds, यूँ लिखिएगा, this also corresponds with an improvement in terms of trade value over the period. ठीक है जी, because we know that terms of trade improve हुआ है because of a rising export price which has caused the exports to actually go down. If अब important बात, if exports get expensive, that is if the price of exports go up, quantity of exports will go down. तो अगर exports expensive हो जाती हैं तो quantity of exports will go down, जिसकी वजह से आप क्या लिखेंगे, जिसकी वजह से आप लिखेंगे export revenues would decline. ठीक है, that would result into a fall in export revenues, तो इसको लिंक करना होगा. On the other hand, import expenditures would increase. Import expenditures would increase because as imports are relatively cheaper. So as imports get relatively cheaper, you could say that the price of import goes down in relative sense, the price of import goes down, and because of that, your quantity of imports, basically go up. And that basically causes a deterioration in the balance of trade, which is the reason why your current account goes into a deficit. And this has caused the current account to go into a deficit from a surplus in 2019, right? This is what you will write. लेकिन यहाँ आपका सवाल एंड नहीं हो रहा. क्यों नहीं एंड हो रहा? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ आपने मिस कर दी है. वो क्या मिस करी है? कह रहा है ये सब जो आप बातें कर रहे हैं ना, इसको पीडी से लिंक करना है आपने. एक्सप्लेन इट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पीडी. तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको लेकिन लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर. बहुत यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एन इकोनॉमिक्स का पेपर, वो भी एडवांस लेवल इकोनॉमिक्स है. तो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर राइटिंग सेंस, योर एक्सप्रेशन इज अप टू द, मतलब ऐसा लगना चाहिए एग्जामिनर को पढ़ के किसी इकोनॉमिस्ट ने सॉल्व किया है. ठीक है, बट अब आप क्या लिखेंगे? बट फॉर द एक्सप्लेनेशन टू होल्ड ट्रू. ठीक है ना, ये जो आपने एक्सप्लेनेशन ऊपर दी है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे ही हो, फॉर दिस एक्सप्लेनेशन टू होल्ड ट्रू, इट इज़ नेसेसरी दैट द पी डी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड द पी डी फॉर इम्पोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1. दैट इज इलास्टिक. ठीक है, सो द पी डी फॉर इम्पोर्ट्स एंड पी डी फॉर एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन 1, अगर ये इलास्टिक हैं एक्सपोर्ट्स फॉर इम्पोर्ट्स, तभी ऐसा होगा. ठीक है, because the PD for exports and the PD for imports would help us ascertain, हमें इस चीज़ से ascertain करने में help करेगा the impact on export revenues and import expenditures as it would show the responsiveness on the quantity of exports and the quantity of imports following a change in the price of exports and imports. तो अगर exports और imports की price में change आता है तो उसका impact exports की क्वांटिटी पे और इंपोर्ट्स की क्वांटिटी पे किस एक्सटेंट तक पड़ेगा, जिसकी वजह से हम ये डिटर्मिन कर पाएंगे कि यार एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ गिरेंगे या बढ़ेंगे, या इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स गिरेंगे या बढ़ेंगे. ये चीज़ किस पे डिपेंडेंट है? ये पीडी फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है. ये लिखकर आपको आना होगा. तो अगर हम ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डेफिसिट में गया है, और रिलेटिवली इंपोर्ट प्राइसेस गिर गई हैं बिकॉज डोमेस्टिकली गुड्स एक्सपेंसिव लग रहे हैं, तो इंपोर्टेड गुड्स हम कंज्यूम करें, इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स अच्छी खासी बढ़ गई होगी. तो इसके लिए पीडी फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स शुड बी ग्रेटर देन 1. ये आपको लिखना जरूरी है ताकि फॉर द अबव एक्सप्लेनेशन टू होल्ड ट्रू. ठीक है, क्योंकि अगर वो इनइलास्टिक होते हैं, if they were inelastic, let's assume that the PD for exports and imports were less than 1, if it was inelastic, तो उस केस में क्या होता? उस केस में ऑपोजिट अफेक्ट होता. क्यों? बिकॉज अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स गो अप एंड इफ एक्सपोर्ट्स आर inelastic, right, then it will not have that much impact on the quantity of exports. तो उस केस में अगर एक यूनिट एक्सपोर्ट का एक्सपेंसिव सेल हो रहा है, तो मेरे पास तो पर यूनिट एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स पे तो उतना इम्पैक्ट आएगा ही नहीं. सिमिलरली जो
इंपोर्ट्स हैं अगर वो रिलेटिवली चीपर हैं तो मुझे ज़्यादा इंपोर्ट करना चाहिए. बट अगर मैं ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहा बिकॉज इंपोर्ट्स आर लेट्स से इन इलास्टिक, सो इस केस में तो मेरा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स गिर जाने चाहिए. तो बात वही हो रही है कि अगर ये थ्योरी होल्ड ट्रू नहीं करती, सही है, लेट्स सपोज अगर वो इन इलास्टिक होते हैं तो उस केस में तो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज विल राइज फॉलोइंग अ राइज इन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स वुड फॉल, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से मेरा तो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो तो बढ़ जाना चाहिए. सही है ना, तो उल्टा अफेक्ट होगा. इस बात को आप समझें, ठीक है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स गो अप एंड द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स गो डाउन, then export revenues will go up and import expenditures would go down, which will cause a current account, it would cause a current account surplus, let's say, or the deficit to fall. ये जनरल बात बता रहा हूँ. ये तब होगा if PD for exports and the PD for imports is inelastic. It is less than 1. ठीक है, वो less than 1 है. अगर वो greater than 1 है and if the price of exports go up and the price of imports go down and if the PD for exports and imports is greater than 1, it's greater than 1, तो इस केस में what will happen is that since the price of exports are going up, the quantity of your exports would the quantity of your just a second, the quantity of your exports would go down. That will result in a fall in export revenues, and the quantity of your imports would actually go up. That would result into a rise in import expenditures since imports are relatively expensive, and that would actually worsen the current account position. तो current account जो है वो आपका फिर डेफिसिट में चला जाएगा. अगर सरप्लस में है तो वो सरप्लस कम हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली वो डेफिसिट में चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. जैसे इस केस में तो यही हुआ है कि वो सरप्लस से उठ के डेफिसिट में जा चुका है, तो उसकी वजह यही है. और उसकी रीजनिंग पीडी से आपने ये लिंक करनी थी कि यार इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट डिपेंड्स all of it depends upon the elasticity. So it's not the price of exports, it's not only the price of exports and the price of imports that matter, it's actually the elasticity that will help us determine the ultimate effect on the current account balance. This is what you had to write. Such an easy question. Moving forward, understood? I hope understood. अच्छा, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि यू आर फॉलोइंग, यू आर एंजॉइंग इट, बिकॉज मैं यहाँ पे कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता हूँ और मैं यहाँ पे कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ, ठीक है ना. आई रिस्पॉन्ड टू इट एज वेल. ऑल्सो यार रियली ऑनेस्टली गुड लक फॉर टुमारोज पेपर. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Okay guys, now let's move on to part D of the question, which says explain how a negative real interest rate in Turkey will affect the function of money as a standard or deferred payment and store of value. It's quite a simple question. It's saying that money के दो functions हैं, you all know that standard deferred payment and store of value, और ये दोनों functions किस तरीके से affect हो जाएंगे अगर interest का rate यानी real interest rate जो है वो टर्की में नेगेटिव होगा. अच्छा, तो बेसिकली सबसे पहले तो we need to understand what negative real interest rate would mean. सो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट तब राइज होगा जब भी इन्फ्लेशन का रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो इंटरेस्ट की बेसिकली इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाता है. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाता है. इट्स टेलिंग अस the real interest rate basically, because इंटरेस्ट जो होता है वो एक कॉस्ट टू द बोरोवर भी होता है और एक रिटर्न टू द सेवर भी होता है. तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो रियल कॉस्ट टू द बोरोवर बता रहा होता है और रियल रेट ऑफ रिटर्न टू द सेवर बता रहा होता है एक तरह से, ठीक है ना. in terms of the real value of the debt या फिर real value of the return on savings. So जैसा कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन रेट अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा तो रियल इंटरेस्ट रेट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे. जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी होता है बोरोवर के लिए और सेवर के लिए जो है वो रिटर्न ऑन सेविंग भी होता है. तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो बता रहा होता है रियल वैल्यू ऑफ डेट टू द बोरोवर, ठीक है. तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है तो रियल वैल्यू ऑफ द डेट जो होगी वो भी नेगेटिव होगी. तो ये तो बोरोवर के लिए फ़ायदे की बात है. रही बात सेवर्स की, तो सेवर्स के लिए क्योंकि वो रिटर्न ऑन सेविंग है तो रिटर्न ऑन सेविंग, रियल रिटर्न ऑन सेविंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द सेवर, ठीक है. अब इसको फंक्शन ऑफ मनी से किस तरह कनेक्ट करेंगे देख लेते हैं. सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट
का फंक्शन पे किस तरीके से अफेक्ट होगा अगर आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट डिफाइन कर दें क्या होता है एक लाइन में। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एज अ फंक्शन मीन्स कैन यू कैन पे डेट्स और मेक द पेमेंट्स एट अ लेटर डेट, यू कैन डेफर इट मीन्स कि आप बाद में भी इसको पे कर सकते हो। यही मनी की एक फंक्शन भी है अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द अदर फंक्शंस इट हैज़। ठीक है, तो अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट गाइस नेगेटिव होगा तो व्हाट यू विल राइट, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स would impact this function. And how would they impact it? By affecting all those individuals who will use money to perform this function of deferred payments. यानी जो भी मनी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, पैसों को इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी डेट्स को पे करने के लिए, मे बी एट अ लेटर डेट, बिकॉज जब आप बोरो करते हैं आप जाहिर सी बात है पेमेंट को डेफर ही करते हैं ना, डेट को डेफर करते हैं। तो अब वो फंक्शन किस तरीके से अफेक्ट होगा, बेसिकली कौन अफेक्ट होंगे उनमें, लोग बोरोवर्स अफेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोरोवर्स हु हैव बोरोड, सिंपल, दे विल पे बैक लेस इंटरेस्ट, बिकॉज उनके लिए तो इंटरेस्ट डेट है, दे विल पे बैक लेस इंटरेस्ट इन रियल टर्म्स, इन रियल सेंस वो जो अपना डेट रीपे कर रहे होंगे, इंटरेस्ट एज अ डेट रीपे कर रहे होंगे, ठीक है, वो रीपे कर रहे होंगे इन रियल टर्म्स लेस, यानी इन रियल टर्म्स वो लेस रीपे कर रहे होंगे। इनफैक्ट वो नेगेटिव इन रियल टर्म्स वो नेगेटिव पे कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही आपका रियल टर्म्स में नेगेटिव है। सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन द डेट वैल्यू इज लेस इन रियल टर्म्स, हेंस बोरोवर्स आर गेनिंग इन रियल टर्म्स। तो बोरोवर को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट अगर नेगेटिव है तो एक तरह से वो जो डेट पे कर रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो इन रियल टर्म्स नेगेटिव पे कर रहे हैं, यानी उनका डेट जो है वो नेगेटिव है, रियल टर्म्स के अंदर नेगेटिव है, नॉट इन नॉमिनल सेंस, ठीक है। और वैसे भी इन्फ्लेशन के अंदर जो है वो बोरोवर्स जो है वो एक तरह से गेन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी डेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज इन रियल टर्म्स वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर अपना रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो जाए तो फिर तो वो अल्टीमेट गेन है उनका, ठीक है जी। तो आपको ये लिखना होगा इसके अंदर, इजी क्वेश्चन था। स्टोर ऑफ वैल्यू किस तरह इम्पैक्ट होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू इस तरीके से इम्पैक्ट होगा कि पहले तो बता दें स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है। मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो वैल्यू स्टोर्ड होती है, एज इन इट प्रिजर्व, वो वैल्यू प्रिजर्व्ड रहती है नॉमिनल सेंस में। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज, ऑब्वियसली दैट इज वाई इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। So this function allows, and because of this function, क्योंकि money acts as a store of value, that is why it allows the individuals to actually save money as well. And some of it save in the banks as well in order to earn interest, which is a return on saving as well. ठीक है, तो लेकिन अगर इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन बेसिकली इस फंक्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है, डिस्टॉर्ट्स दिस फंक्शन बाय रिड्यूसिंग इट्स रियल वैल्यू, ठीक है ना। बिकॉज ऑब्वियसली रियल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं एज अ फॉर अ सेवर, हम बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ मच दैट मनी कैन बाय। देखें, जब किसी भी मनी की अगर रियल वैल्यू हम देखना चाहते हैं ना, एक तो मनी की नॉमिनल वैल्यू है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक उसकी रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब है कि हाउ मच दैट मनी कैन बाय इन टर्म्स, उसकी परचेसिंग पावर कितनी है, बेसिकली हाउ मच कैन इट बाय द बास्केट ऑफ गुड्स, हाउ मेनी बास्केट ऑफ गुड्स कैन इट बाय। तो अगर इंटरेस्ट एक तरह से रिटर्न है सेवर के लिए, ठीक है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न उसका बेसिकली नेगेटिव हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट्स डिस्करेजिंग सेविंग, इट्स अ लॉस फॉर द सेवर। सो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इफ रियल इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव देन सेवर हु हैव डिपॉजिटेड द मनी टू अर्न इंटरेस्ट एज अ रिटर्न विल लूज इन रियल टर्म्स, वो लूज करेगा इन रियल टर्म्स, ठीक है जी। व्हाई, बिकॉज द रियल वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स वुड गो डाउन। इनफैक्ट वो गो डाउन नहीं, दे वुड इनफैक्ट द रियल वैल्यू वुड बी अ नेगेटिव, उनका जो रियल रिटर्न है वो नेगेटिव में होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक ज़बरदस्त बात आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ फॉल इन मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेव एज रियल रिटर्न्स आर नेगेटिव। तो जो रियल रिटर्न्स है वो हमारे नेगेटिव है, सो देयर इज़ अ फॉल, डिक्लाइन इन द मॉनेटरी वैल्यू टू सेव। और इससे होगा क्या कि ओवरऑल इकोनॉमी, वैसे अगर आप मेंशन करते हैं नहीं करते आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मे बी ये नॉलेज आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी सेक्शन बी में कोई इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। जब रियल इंटरेस्ट रेट्स आपके नेगेटिव होते हैं ना, तो ओवरऑल सेविंग रेशो डिक्लाइन करता है इकोनॉमी में, ठीक है जी। इनफैक्ट, और मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, क्योंकि केस स्टडी में कोविड का रेफरेंस दिया हुआ है, तो कोविड के टाइम पे देयर वाज अ रिसेशन, और ये पॉइंट ऑफ 2020 की केस स्टडी है। ये केस स्टडी अगर आप देखें तो ये एक्सट्रैक्ट हुआ है फ्रॉम 25 जून 2020, ये कोई होगा टर्की का कोई आर्टिकल उनके न्यूज़पेपर या मैगजीन का, एनीवेज। तो इस टाइम पे कोविड जो था वो पीक पे था, अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका था, डेथ्स भी तेज़ी से बढ़ रही थी, डेथ टोल बढ़ रहा था, तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ मूव कर चुकी थी, ठीक है। और ओवरऑल रिसेशनरी इम्पैक्ट्स वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो वैसे भी रिसेशन के अंदर पीपल गेट अनएम्प्लॉयड, लोगों को जॉब लॉसेज हो रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू सेव, उनके पास सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर
तो कोविड की सिचुएशन के अंदर अगर आप इसको लिंक करना चाहें लिंक कर लें। वैसे तो क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहा, अगर आप मतलब यू नीड टू सेव टाइम, लेकिन नॉलेज फिर भी आपके पास होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। भले फिर आप उसको लिंक करें ना करें, दैट्स योर चॉइस, बट नॉलेज होगी तो फिर सेक्शन बी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा रिसेशंस के अंदर यू शुड हैव मनी टू सेव। तो अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होगा तो सेवर्स के लिए वो बहुत डिस्करेजिंग बात होगी, ठीक है जी। इनफैक्ट अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स आपके नेगेटिव हैं तो उस सिनेरियो के अंदर जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर आप ये वर्ड यूज़ करना चाहते हैं एएस के स्टूडेंट्स कर लें। अगर कोई A2 का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको तो पता होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। एएस के स्टूडेंट्स को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है ये लिखना, ठीक है। लेकिन अगर पता है तो वाइन यू गाइस मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो ऊपर चले जाती है जनरली, बिकॉज नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, और सेविंग रेशो जो है वो डिक्लाइन होना शुरू होता है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज मच बेटर इंसेंटिव टू कंज्यूम दैन सेव मनी, राइट। तो सेवर्स आर बेसिकली लूजिंग इन दैट सेंस। तो ये लिखना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, इजी सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पार्ट ई ऑफ द क्वेश्चन। इट सेज डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम whether further cuts in Turkey's interest rates are likely to generate inflation or speed up the economic recovery. Okay, fine. So they're saying if Turkey cuts down its interest rates, will it, most likely result in inflation or will it result into economic recovery? And they're asking us to explain it in fact, discuss it using a demand and supply diagram. Whenever we are going to be attempting to discuss questions, remember whether in case study or in section B, we always have to make sure that we evaluate and, give reasoned conclusions. Okay, now let's move on. And this is a very interesting question, by the way, and I'll use this opportunity to explain it in significant detail, because these kind of questions can also come in section B as well. So the layout that I have formed right now for the purpose of this video is quite comprehensive, so that my objective is to also make sure that you understand different concepts. Okay, पहले तो आप ये समझे इसमें कि सिनेरियो आपको केस स्टडी में जो दिया हुआ है ना, उन्होंने आपको कोविड पेंडेमिक का एक रेफरेंस दे दिया है कि जी आपको पता है कोविड पेंडेमिक में रिसेशन आ चुका था, रिसेशनरी फेजेस चल रहे थे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड रिसेशन था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके जो सेंट्रल बैंक है टर्की का, वो ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा, रिसेशन को आने तो नहीं, मतलब रिसेशन को प्रोलॉन्ग तो नहीं करेगा। तो टर्किश गवर्नमेंट ने क्या करा है, उनका तो ऑब्जेक्टिव है वो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक रिकवरी है। रिसेशन के बाद रिकवरी एक फेज़ होता है जब रिसेशन के बाद आ रहा होता है, इकोनॉमी को रिकवर करना है ना, रिसेशन से, रिसेशनरी फेजेस से निकालना है जो कोविड में चल रहा था। लाइक आई सेड, इकोनॉमिक रिकवरी जो फेज़ है वो रिसेशन के बाद आ रहा होता है। और इकोनॉमिक रिकवरी में हो क्या रहा होता है, इकोनॉमिक रिकवरी को आप समझें, इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, यानी रियल जीडीपी अब हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसको वर्ड हम इकोनॉमिक रिकवरी का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले रिसेशनरी फेजेस आ चुके होते हैं, रिसेशन आ चुका होता है। बट द वर्ड रिकवरी इज़ यूज एज इकोनॉमी इज रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ अ रिसेशन, इसलिए हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं इकोनॉमिक रिकवरी का। लेकिन इसमें हो ग्रोथ रही होती है, रियल जीडीपी आपकी बढ़ रही होती है, ठीक है जी। तो अब जाहिर सी बात है टर्किश गवर्नमेंट भी चाहती है कि इकोनॉमी जो है वो रिकवर करे, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कोविड का रेफरेंस दिया है। तो अब इंटरेस्ट रेट जो है ना वो मज़ीद टर्किश गवर्नमेंट जो है वो गिरा रही है, और मतलब पीपल आर फियरिंग के इंटरेस्ट रेट मज़ीद गिर जाएगा, और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी कि जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट कट है उसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि जी समथिंग के नहीं ज़रूरी है ये फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, सम आर सेइंग कि नहीं इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। तो अब यही आपसे वो बेसिकली आपके जो बेसिक इन्होंने ये आपसे आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट आपसे पूछ रहा है, सिंपल। उसने आपको ट्विस्ट करके उन्होंने आपको दे दिया है कि इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या आएगा, इन्फ्लेशन पे आएगा भी या उससे इकोनॉमिक रिकवरी होगी। अब स्टूडेंट्स ये सोचते रह जाएंगे कि यार इकोनॉमिक या तो इकोनॉमिक रिकवरी होगी या इन्फ्लेशन आएगा, और दोनों में से क्या आएगा। वो एक स्टैंड्स ले लेंगे, नहीं इकोनॉमिक रिकवरी होगी नहीं, या वो कह देंगे जी इन्फ्लेशन होगी, या वो कहेंगे इन्फ्लेशन होगी तो इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हो। इस तरह नहीं है, देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, बहुत सिंपल। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता दूं कि अफेक्ट ऑफ अ डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट होगा क्या, कैसे आप इसको ले इसको। अब इधर मैं फॉर्म करूंगा चेन ऑफ एनालिसिस, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ लिखने से पहले उसको अफेक्ट उसका बताने से पहले उसको एनालाइज करना, उसको चेन ऑफ एनालिसिस स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप समझें। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल गो डाउन। सही है, सबसे पहले चीज़ तो आप लिखोगे, बोलोगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल हो जाएगी, फिर जिसकी वजह से कंज्यूमर्स एंड फर्म्स वुड बोरो मोर। ठीक है जी, और इंडिविजुअल्स भी फर्म्स ही बोरो करेंगे। जब ऐसा होगा तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, दैट इज सी कॉम्पोनेंट ऑफ एडी, एंड इन्वेस्टमेंट्स आई कॉम्पोनेंट ऑफ एडी वुड इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, कंज्यूमर्स फर्म्स बोरो करेंगे तो कंज्यूमर फिर वो स्पेंड करेंगे तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। फर्म्स वुड ऑब्वियसली स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स. This would cause aggregate demand to rise as shown in the diagram A below, causing the price level to rise to P2. अब मैं उसकी उस पॉइंट पे आता हूँ, लेकिन देखें जैसे मैंने लिखा ना कि it will cause AD to rise as shown in the below diagram. ठीक है ना, इस तरीके से रेफरेंस दें आप. दूसरी चीज़ जो इसके अंदर होगी इन्फ्लेशन के, एक तो आपने बता दिया इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से आप कहते हो कि यार एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज. ठीक है, फाइन, बट हाउ विल इट इंक्रीज, उसका चेन बनानी बहुत ज़रूरी है कि सी इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, फिर वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गिरेगी. लेकिन दूसरा जो इम्पैक्ट होगा ना इंटरेस्ट रेट के डिक्लाइन होने से, वही होगा कि इट विल रिजल्ट इन टू हॉट मनी आउटफ्लोज. हॉट मनी क्या है? हॉट मनी फ्लोज जो होते हैं, दे आर शॉर्ट टर्म फ्लोज ऑफ मनी into and out of the country, and where investors seek better returns in the form of better interest rates. तो hot money outflow होना शुरू हो जाएगा, because वो investors जिन्होंने अपना financial पैसा लगाया हुआ होगा Turkish commercial banks में, deposit करे हुए होंगे पैसे in order to earn interest rates, they will seek elsewhere कि यार हमें कहीं और से attractive interest rates अब मिल जाए, तो वो अपना पैसा निकालेंगे वहाँ से, withdraw करेंगे. So foreign investors will move their financial capital to other countries that are offering better returns, relatively better returns. ठीक है, तो so there will be a flight of capital out of the country. This would actually increase the supply of lira. तो Turkish currency की supply बढ़ जाएगी, lira की supply बढ़ जाएगी, supply of currency will rise. ठीक है, because and this would actually cause the currency to depreciate. देखिए चेन establish करना बहुत, एक एक step by step, अच्छा ये होगा, उसकी वजह से ये होगा, और उसकी वजह से ये होगा, ये बहुत ज़रूरी, इसको कहते हैं चेन ऑफ एनालिसिस. अब क्या होगा कि जब करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी आपकी, तो फॉल इन टर्किश लीरा, इट वुड मेक योर एक्सपोर्ट्स इट वुड मेक योर एक्सपोर्ट्स चीपर. एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे एंड इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव. ठीक है, एंड अज्यूमिंग दैट पीडी फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन 1, अज्यूमिंग दिस. ठीक है, द एक्सपोर्ट रेवेन्यूज वुड गो अप एंड इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर्स वुड गो डाउन, कॉजिंग अ राइज इन नेट एक्सपोर्ट्स, हेंस एडी वुड इंक्रीज. तो स्टूडेंट अगर ये लिख कर आ जाएगा कि जी इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो आपका डिप्रिशिएट हो जाएगा, विदाउट टेलिंग के क्यों होगा, हॉट मनी आउटफ्लो का जिक्र नहीं करेगा, विच इज़ रॉन्ग. ऐसा नहीं करना है आपने, चेन तो स्टैब्लिश करें. उसके बाद आप ये लिख देंगे कि जी एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होने से अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, विदाउट टेलिंग के कैसे हो जाएगी. ये इस तरीके से बेटा नहीं करना प्लीज आंसर्स. ठीक है, प्रॉपर चेन ऑफ एनालिसिस स्टैब्लिश करना. दिस इज द ओनली रीजन वाई यू नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट फॉर्मिंग द प्रॉपर चेन ऑफ एनालिसिस. अब इसके बाद डायग्राम बनाने का भी तरीका होता है. एक बात मेरी समझ लें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई और डायग्राम कहीं कोने कोने में बना हुआ है विदाउट, और वो डायग्राम शुड नॉट फील लोनली. द डायग्राम शुड बी कनेक्टेड विद द अबव और द बिलो पैराग्राफ्स. रिमेंबर दैट द डायग्राम शुड नॉट बी ड्रॉन इन आइसोलेशन, कि आपने डायग्राम बना दिया और इसके बराबर में से एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, और बच्चे कहते हैं जी हमने तो डायग्राम बनाया था एग्जाम में. अब वो डायग्राम जो बनाया था उसको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि वो डायग्राम क्या कहना चाहता है आपसे, मतलब डायग्राम क्या समझा रहा है, उसको कनेक्ट करना होता है अबव और बिलो पैराग्राफ्स के साथ. अब वो आपकी मर्जी है, लेकिन डायग्राम शुड नॉट अपीयर एज अ लोनली फिगर इन योर आंसर स्क्रिप्ट. ठीक है, सो डायग्राम ए क्या शो कर रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट रेट ऑन प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी. सिंपल एग्रीगेट डिमांड हमें आप दिखाइएगा कि शिफ्ट हो जाती है टू द राइट, एंड दैट कॉजेज योर प्राइस लेवल टू इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2, मेक द एरोज एंड नेशनल इनकम टू राइज फ्रॉम Y1 टू Y2. जाहिर सी बात है नेशनल इनकम मिल रहा है. तो आप ये देखें इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है. इकोनॉमिक थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है, आप लिखेंगे इकोनॉमिक थ्योरी सेज दैट अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू अ राइज इन CI एंड नेट एक्सपोर्ट्स causes demand for inflation from P1 to P2. That is what economic theory tells us, that AD rise होगी, demand for inflation आएगी. That's what economic theory tells us. And obviously real GDP will also rise from Y1 to Y2, national income will go up, profit would increase, employment would go up, especially unemployment would go down, cyclical unemployment would go down, demand deficit unemployment would go down, economic growth आएगी economy में. Firms would use, because अब इसको एक्सप्लेन करें, फर्म्स वुड यूज़ देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू इंक्रीज आउटपुट. जाहिर सी बात है इकोनॉमी के अंदर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज होंगे उनको फर्म्स यूज़ करेगी टू इंक्रीज आउटपुट. दिस ऑल्सो हैज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, कॉजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी. एक इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, बाय द वे एक्चुअल ग्रोथ होगी, नॉट पोटेंशियल ग्रोथ बल्कि एक्चुअल ग्रोथ, बिकॉज एक्चुअल ग्रोथ आती है आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से. एनीवेज
एक चीज़ इसमें आप और जो लिख सकते हैं वही लिख सकते हैं कि देखें इन्फ्लेशन आने का एक और भी रीज़न हो सकता है, वही आप लिख सकते हैं कि फॉल इन द करेंसी में फ्यूल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एज वेल। वो कैसे, आपको पता है इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि टर्किश लेरा जो है अब यू नीड टू पे 7.3 liras in order to buy $1 worth of maybe an import. So maybe let's assume that Turkey is importing some key commodities or key raw materials, let's say. So now it has to pay 7.3 liras, right? So that's maybe getting expensive. You're importing expensive raw materials, and assuming that, and for that, obviously we know that the PD for your imports of key commodities is, let's say, inelastic. हम हर सारे imports की बात नहीं कर रहे टर्की के कि सारे टर्किश imports inelastic, हम की commodities की बात करें। तो अगर assuming कि टर्की is importing, although case study में mention नहीं है, लेकिन आप ये assumption लेके लिख सकते हैं, assuming that Turkey is importing maybe some of the key raw materials that are used in its industries, that may fuel cost push inflation as well, or maybe cost push inflationary pressures as well. ज़रूरी नहीं है कि बहुत significant level पे वो आ रहे हों, but yes, कुछ economy can experience certain cost push inflationary shocks in the economy. उसका डायग्राम आप बना के दिखा दें, फॉल इन एग्रीगेट सप्लाई विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रियल जीडीपी। इवन अगर आप, क्योंकि देखें 6 मार्क क्वेश्चन है, अगर आप लेट्स से ये वाला डायग्राम नहीं भी बनाते हैं मे बी इसको, लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट वुड गो अप एज वेल, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ मार्क्स। द 6 मार्क क्वेश्चन इज नॉट अ 12 मार्क क्वेश्चन। बना देते हैं, वेल एंड गुड, आपका फ़ायदा है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बट अगेन लाइक आई सेड कि आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ rolling out this video on YouTube to actually explain you different concepts as well while I'm running you through the case. So short run aggregate supply shift to the left, and then and this is actually bad for the economy as well, because real GDP is falling over here. So what I have written is that a fall in aggregate supply will have a negative impact on real GDP and the firm's profits as well, which is something which the economy cannot afford during a pandemic, where already aggregate demand is too low. Obviously, there's a global pandemic, and Turkey is also affected by it. Obviously, firms would not want their profits to go down, right? Especially in this situation. So yeah, you can mention about cost push inflation as well. लेकिन it's a discuss question, guys. आप discuss question बगैर evaluation के नहीं कर सकते. I have been telling this for so long. Evaluation are so important, and the way you write an evaluation, the way you express, I do intend to make a separate video on how should we actually start evaluation as well. I will definitely make a separate video on my channel as well for this. Anyways, so the fact that the question is asking you whether this will result into economic recovery or inflation. So ऊपर तो आपने कह दिया कि जी बिल्कुल इन्फ्लेशन आएगी, डिमांड पर इन्फ्लेशन आएगी, बट ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेशन आए। उसकी वजह क्या है? वैल्यूएशन में आप बोलेंगे, काउंटर आर्ग्यू करेंगे आप, काउंटर आर्ग्यूमेंट। ऊपर आप कह रहे हैं इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि इन्फ्लेशन आएगी, नीचे आप काउंटर आर्ग्यू करेंगे कि हाउएवर डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट, however, the decline in interest rate might not cause inflationary pressures, as this would depend upon the existing state of the economy. देखें, inflationary pressures आएंगे नहीं आएंगे, this depends upon the existing state of the economy. क्या मतलब इस बात का? फिर इस बात का मतलब समझाएं। अच्छा, अब ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल किसी किताब में या किसी नोट्स में पढ़ लिया होगा एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, उसी को आप एज इट इज़ लिख कर आ गए। अब एग्जामिनर को क्या पता कि आपको मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हो? ये तो आपने एग्जामिनर को बताना है ना कि आप जो कहना चाह रहे हो कि वो वही सोचे जो आप कहना चाह रहे हो। और वो कैसे सोचेगा जो आप कहना चाह रहे हो? वो तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप इसके आगे लिखेंगे, द इकोनॉमी इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रिसेशनरी फेज। ठीक है जी, क्योंकि द केस इज सजेस्टिंग कि हम देखें टर्की का सेंट्रल बैंक क्यों इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक रिकवरी चाहता है, क्योंकि कोविड हिट इकोनॉमी है। ठीक है जी, which shows that the economy or recovery recession से पहले, recession के बाद ही आती है, sorry. So the economy is going through a recessionary phase, hence the level of aggregate demand is already too low. It's already too low. And economy has, which obviously means that if the aggregate demand is too low, it means that the economy is below full employment, and which means that the economy has a lot of slack, a lot of idle capacity available. This concept is illustrated in the below diagram, because then you will make the Keynesian long run aggregate supply curve, because Keynes argued that if the economy has slack, it has the idle capacity, then a rise in aggregate demand will not result into demand pull inflationary pressures. It will not increase
your price level. Hence, we see that if the Turkey cuts down its interest rates, the aggregate demand will increase from Y1 to Y2 without a subsequent increase in demand per inflation, without a rise in price level, because this is your full employment level of output. That is YFE is your full employment level of output, and your existing output, that is your existing state of the economy, is at Y1, and there's a negative output gap. We know that this difference in real GDP is representing a negative output gap or a deflationary gap. It's indicating that your output is, or your real GDP or national income is below full employment level, right? So increasing aggregate demand in this situation is actually good and needed for the economy. First of all, the economy, you could say that the economy shouldn't really be concerned about inflation at the moment, because economic recovery is important. And even if you reduce interest rates, then Keynes argued that this diagram, according to this diagram, the economy has already a lot of slack available, so there are very less likely chances that the economy will be hit by demand pull inflationary pressures. तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? आप लिखेंगे कि देखें, economic theory suggests that a cut in interest rate that represents an expansionary monetary policy, obviously, will boost AD and increase national income, resulting in economic recovery as firms have higher resources that boosts further rounds of spending. क्या मतलब इस बात का? What I have written is कि इकोनॉमिक थ्योरी तो ये कहती है कि जी इंटरेस्ट रेट कट करने से एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तो है, उससे एडी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक रिकवरी तो आएगी. अब इकोनॉमिक रिकवरी क्यों आएगी ये भी मैंने लिख दिया साथ में. क्यों आएगी? क्योंकि फर्म्स हायर करेंगे रिसोर्सेज. एंड भाई जब रिसोर्सेज आप हायर करोगे, लेट्स से यू हायर लेबर, तो लेबर इनकम मिलेगी, वो जो इनकम मिलेगी उसको फर्दर उसको स्पेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दैट विल एक्चुअली बूस्ट फर्दर राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग, मैंने लिखा है. ठीक है. सो लेकिन however, whether it would also cause demand pull inflation depends upon the current level of economic activity, which the case suggests is quite low due to the pandemic. Hence, in this sense, देखो अब इधर से इंपॉर्टेंट बात देखो, कंक्लूजन का तरीका देखो, जजमेंट देने का तरीका देखो. Hence, in this sense, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन. Hence, in this sense, chances of demand fuel inflation is less significant. मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन आएगी ही नहीं या आ ही नहीं सकती. हमने इसको एक अलग अंदाज में लिखा. हम देखें, एक जजमेंट में ना स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगर आपने किसी बात पे ले लिया ना, तो फिर तो आप इसको 100% प्रूफ करें अपने एग्जाम में. अगर आपने उसको इफ यू डोंट बैक अप विद एविडेंस, योर स्टैंड हैज नो इंपॉर्टेंस. ठीक है ना. तो इसमें आप लिखें कि hence in this sense chances of demand fuel inflation is less significant, less likely, because it already has a lack of. Instead of writing there will be no demand pull inflation, a better version would be that the chances of demand pull inflation are less likely due to a lot of slack or idle capacity in the economy, right? Keeping in mind the large slack or the fact that the economy has already idle capacity present with it. Okay guys, so this is how you will answer this question, and I hope you enjoyed watching this video. If you did, please tell me in the comments. I would love to hear them, and I'll see you all around in the next video.